2271st episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात. Women of the Year के साथ really want to thank Parik Brother Jewelers presenting राज की बात Women of the Year in association with a big thank you to We Herbs, one of the best herbal companies in Nagpur city. Preet Design Studio opposite Liberty Theatre for women who want to look pretty and pretty. Yeah. Also a big thank you to Stylix Kitchens and Wardrobes, one of the best brands of modular kitchen and wardrobes, of course. Also my venue partner is Four Seasons, one of the best furnishing stores at Dharampet in Nagpur. And also if you want to look pretty beautiful in an event, please get in touch with Vasudha Agrawal, the makeup artist. She's actually the best. Also if you like butter chicken, like me, yeah, not during the Ganesh times, but not in Navratris also. But if you love eating butter chicken, you should go to Chakna East Nandanwal. मेरी आज की जो मेहमान है, she is a lawyer and she's not a liar. She believes in justice and she believes, because she comes from a family of non-legal, nobody as lawyer in a family. She's the first generation lawyer and she's working very hard to take the legacy of the family with honesty to the next level. Please welcome my guest today, my Women of the Year. Please welcome Advocate Kritika Patni. Hi Kritika. Hi. Thank you so much for having me on your show, Raj. Welcome. It's an honor to be here. It's an honor to interview you, है ना? तो वो परिवार है जिन्होंने नागपुर के लोगों के हाथों में टू व्हीलर थमाई, है ना? मतलब पाटनी एक ऐसा परिवार है, one of the most respected families of Nagpur city, have helped Nagpur. You come from family who have also left hand से बहुत सारे लोगों की मदद की, right hand को पता नहीं चला. नहीं. Yeah? No. I come from a family who are into a business management kind of a thing. Or my father is into the chemical business. He's into the industry of chemicals. Okay. So you come from that family. Yeah. But then बचपन से क्या सपना था? लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है? नहीं था बचपन से ऑनेस्टली नहीं था. बट एज एंड व्हेन आई ग्रू अप आई सॉ सो मेनी केसेस हैपनिंग इन माय ओन फैमिली. स्पेशली मेरे पापा के पास काफी केसेस होते थे, लोगों को हमने काफी सू किया है फॉर वेरियस रीजंस. सो वो मैं देखते आई. देन एक इंसिडेंट हैड हैपेंड. वन ऑफ आवर हाउस हेल्प, हर डॉटर, शी गॉट प्रेग्नेंट. So that was something, and she got pregnant out of the wedlock. So that had happened. So I realized that okay, you need a doctor, right? And she was young. She must be like 16 or 16 and a half or so. So this lady came to us and she was like, "Ki madam, ऐसा हो गया है." So we were like, okay, we need to get it aborted and all of that. Then I realized, yaar, I have to be a gynecologist. Why not? Because I'll be able to help people. I'll be able to take care of these women. Especially women. When how old were you that time when you thought I about must this? be in class 10. Okay. 10 or so. 10th standard. Yeah, 10th standard. Till then मुझे ऐसा था कि I want to take science and then I'm going to be a doctor. ये सब सोच रखा था. Then I realized that she was, manipulated. उनके ऊपर assault हुआ है. It was not उनकी consent से. And she was a minor, right? She was under 18. तब मुझे समझ आई जब हमारी सब बात हुई घर पे. So my parents told me, बेटा ऐसा होता है. This happens. And we wish we had a lawyer, We wish we had a lawyer in our family कि हम ये सब चीजों का भी ध्यान रख पाए. जो भी हो रहा है. Then that was the time when I realized, okay, I should become a lawyer maybe. I can do it. Let's see. So honestly, the field chose me. I can put it that way. So ये हुआ, and then I started with my CLAT and everything, and I passed with a flying colors and so. And I started with my career, like पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद internships करी, court of law समझा कैसा होता है, and rest is history. ये कितनी बार ये डायलॉग कितना बॉदर करता है, या you also somewhere believe now ये जो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग है कि ये सही है? See, honestly, हमारे जो इंडियन जुडिशरी में होता है बिकॉज क्या है, 10 लाख पीपल हैव वन जज टू देम, राइट? हमारे पास जजेस की डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम है. सो इट डज हैपन लाइक दैट. तो होता है, इसलिए तारीख पे तारीख वाला सीन आता है. स्पेशली हम अगर लैंड केसेस देखते हैं तो उसमें ये चीज जरूर होती है. बट विद द गवर्नमेंट पुटिंग इन प्रेशर, कमिंग इन टू पिक्चर, टेकिंग केयर ऑफ द मैटर्स,
things have been a bit better as compared to what they were. अभी कल ही के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रही थी कि इतनी सारी अभी वापस से डिपेंडेंसीज है, केसेस पेंडिंग है हमारे. दिस इज देयर, बट ठीक है, हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके तरफ. और आई हैव वर्कड विद अ जज ऑल्सो, अ वेरी प्रेस्टिजियस हाई कोर्ट जज. ही इज रिटायर्ड नाउ, सो आई नो इट इज नॉट इजी. It's not easy. It is not easy. Judges have more pressure? A lot of pressure. A lot of pressure. Like Raj, imagine हम एक वर्डिक्ट भी अगर उन्होंने गलत दिया, गलत इन द सेंस कि उनके हिसाब से लॉ पॉइंट व्यू के हिसाब से वो सही है, बट द अदर पीपल थिंक दैट नहीं, सर ने ऐसा करना चाहिए था या लॉर्डशिप ने ऐसा करना चाहिए था. पीपल डू थिंक लाइक दैट, राइट? सो इट डज कम ऑन देम, इट डज कम ऑन देयर कैरेक्टर. बातें होती है अलग अलग तरीके की, 100 तरीके की बातें होती है. सो आई मैं भी ऐसी बोलती थी, क्या तारीख पे तारीख है, नहीं हो रहा है काम, कुछ भी नहीं हो रहा है. जब मैंने जज के साथ काम करना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज कि बॉस, दिस इज नॉट एन ईजी पीस ऑफ केक टू गल्प इन, और ये काफी टीडियस टास्क है. I worked with him for a year or so. पर जब अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं, Yeah. पर जब ऐसे केसेस होते हैं जिसके लिए पीपल कम टू स्ट्रीट्स, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, विरोध होता है, और ऐसे केसेस जो एक साधारण, एक आम आदमी को भी कहीं ना कहीं झंझोड़ देता है, ऐसे केसेस भी कई बार वक्त लगाते हैं. प्रॉब्लम्स क्या इतनी ज्यादा हैं कि क्या इतना बारीक, इतना थिन लाइन पे चलना पड़ता है? बिल्कुल नहीं. ऑनेस्टली जो मैं समझ रही हूँ, जो हमारा कोलकाता में भी केस हुआ है, जो निर्भया, रोज हम पढ़ते हैं ये सब न्यूज़पेपर में, राइट? ये क्या हो रहा है ना, लॉज तो स्ट्रिंजेंट है. क्या होता है, मैं एक बात बताती हूँ. लोग सोचते हैं कि यार इनको तो फांसी दे देते हैं, इनको डेथ पेनल्टी दे दो. ठीक है, बिल्कुल सही है. एज अ वुमेन मेरा भी वही अप्रोच रहा है, बट हम फांसी तो दे देंगे, तो उससे क्या होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल एक रेपिस्ट है, ओके, एक्स इंसान है, उसने वट एवर ही डिड, अब उसको पता है कि मैं ये करने वाला हूँ, तो माइट एज वेल मुझे फांसी ही मिलने वाली है. दैट इज द ओनली पनिशमेंट दैट आई एम गोइंग टू गेट. तो उससे विक्टिम के सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. वो क्या करते हैं कि फिर वो सोचेंगे कि यार मरना तो मुझे वैसे भी है, सो व्हाई डू आई लेट दिस गर्ल लिव. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फांसी की सजा देना के बारे में आज बात हो रही है, बट हम उसको लॉ फिलहाल नहीं बना सकते. मैं खुद उसके एकदम आई एम पॉजिटिवली होपिंग कि ऐसा हो, बट ऐसा करना इज डिफिकल्ट. अगेन यू टॉक अबाउट द थिन लाइन. येस, देयर इज अ थिन लाइन. जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है. हमें मॉरली अपब्रिंगिंग में काम करना बहुत जरूरी है. छोटे छोटे बच्चों को चीजें सिखाना बहुत जरूरी है कि बेटा, यू हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग वुमेन एट सम डिसेंट लेवल एटलीस्ट. हम मॉरली अगर लोगों को कैरेक्टराइज करना चालू करेंगे, तो मे बी वी विल बी एबल टू हैव सम सोल्यूशन टू द लार्जर प्रॉब्लम. एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, वहीं पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है. इसको कैसे करें? एक फादर अपनी फूल सी बेटी को जब बड़ा करता है, एक माँ अपनी बेटी को जब रोज अपने उसके कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए विदा करती है दरवाजे पे, तो वो सिर्फ अपने मन में चिंता लेके दरवाजा बंद करती है. इसको किस तरह से समझना चाहिए? व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट? I agree. I mean, I wouldn't lie. That happens with my parents as well. कि मैं घर से जा रही हूँ, बेटा 10 बज गई है, घर आ जाओ, लेट हो रहा है. अग्रीड वो है. हमने अभी रिसेंटली फैबा कैफे में एक कैंपेन भी किया था इस चीज को लेके. तो उसमें हमने यही ट्राई किया कि हम क्या कर सकते हैं ना, कि वी कैन पोस्ट अबाउट इट ऑन दैट हेल्पलाइन. जो हम हेल्पलाइन नंबर एक क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी. पुलिस की एक हेल्पलाइन नंबर है भी, और कैमराज एवरीवेयर शुड बी एफिशिएंटली वर्किंग. कोई भी फॉल्स अगर रिपोर्ट भी हो रहा है, तो भी एक बार जाके आप कॉग्निजेंस करिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, ऑनेस्टली ये जो हो रहा है हमारे यहाँ, इट इज नॉट इवन सेफ फॉर मेन ऑल्सो. लड़कियां तो है ही अनसेफ. आजकल आप देखेंगे कि इवन मेन आर बीइंग अब्यूज्ड सेक्सुअली, राइट? LGBTIQ communities are also coming forward with, and they're being there in the pipeline as well. तो यही है, we have to be together, we have to respect each other, we have to. अगर हमारे साथ होता है यार, नॉर्मली भी हम सड़क से जा रहे हैं, पीपल विल पास कॉमेंट्स, हम एक दिन चुप रहते हैं, 2 दिन चुप रहते हैं, बट नो, स्टेइंग क्वाइट इज नॉट द आंसर. प्लीज स्पीक अप.
हमारी जो सोसाइटी है इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज करने के लिए. कोई इंडिविजुअली कहीं नहीं पहुंच सकता, राइट? तो प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग. आपको जो दिक्कत है आप प्लीज बात करिए, पुलिस में कंप्लेंट करिए एंड देखते हैं फिर एक्शन तो पुलिस लेती है. आई नो थोड़ा वहां पे भी इश्यूज है, मैं नहीं डिनाई कर रही हूँ, बट दैट इज द ओनली थिंग. हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं. हम जितना डरेंगे उतना हमें डराया जाएगा. तो जब कृतिका पाटनी एडवोकेट कृतिका पाटनी बनी, उस दिन के बाद लोग कितना डरने लगे आपसे? नहीं, और आपने कितने लोगों को डराया ये बोल के, या ये कह के कि आई विल सू यू, आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट? टचवुड राज, ऐसा तो नौबत नहीं आई है कि मुझे ऐसे किसी को कभी बोलना पड़े कि बेटा बिहेव योरसेल्फ, आई एम गोइंग टू सू यू. इट्स नॉट हैड हैपेंड येट, बट हाँ, people have started taking me more seriously. You know, I have gone through this. लोग बोलते हैं there's a certain kind of a way that you look, Okay. right? There is this topic that I always wanted to talk about is pretty privilege. ये एक सीन भी मैंने बहुत देखा है, बट क्या होता है, लोग सोचते हैं कि तुम एक सर्टेन वे दिखती हो तो तुम्हारे काम ऐसे हो जाते हैं. You just have to go, talk, and it's done. What about here? Nobody is going to entertain the face if you don't have brains. Absolutely. That is very, very important. तो हाँ, लोगों ने बहुत seriously लेना चालू किया है. I have time and again gone in the court of law. I have spoken my heart out to the judge. केस को लेकर, केस की पूरी बात करिए, केस समझाया है, आर्ग्यू करा है, लोगों के लिए जस्टिस भी लाया है, केसेस क्लोज भी हुए हैं और रिजेक्ट भी हुए हैं. सभी होता है. इट्स ऑब्वियसली बोथ वेज, पार्ट ऑफ द गेम. बट पीपल, यस, व्हेन आई वॉक आउट ऑफ दैट रूम, head held high, shoulders are broad, people look at me, okay, she's got something in her, she's doing great. न्यायपालिकाओं में अब तक सिर्फ वकील, यू नो, जो जस्टिस के लिए जो लोग उम्मीद से आते हैं वो, और जिन्होंने क्राइम किया होता है वो, या पुलिस वाले या जज या कैंटीन वाले, यही नजर आते थे. अब पॉलिटिक्स भी घुस गया है ना न्यायपालिकाओं में. आप वोट देती हैं कि नहीं देती हैं 100%. जब न्यायपालिकाओं में इलेक्शंस होते हैं, और राजनीतिक पार्टियों का घुसना, हाउ डू यू लुक एट इट? सी, आई फील जो डेमोक्रेसी है इसके 4 पिलर्स वैसे ही है, राइट? तो अब अगर आप जुडिशरी की थ्रू एंड थ्रू बात करते हो तो वो भी पॉलिटिशियंस के बिना नहीं चल पाती है, राइट? दे ऑल्सो नीड सपोर्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी विच इज द सेंटर, एंड द सेंटर कैन नॉट वर्क विदाउट the judges, the Supreme Court, the High Court, the District Court, and all the other courts. So you need both. Honestly, for me, they go parallelly and they go hand in hand. बाकी तो corruption is everywhere. We can't help that. वो तो है ही. That is in picture. अब चूंकि you know it's been good. How many years now in total? 6? I can say 6.5, 7 years. Yeah, 7 years in total. ये पिछले 7 सालों में जो एक्सपीरियंस मिला है, अगर आप एक ऐसा करियर चुनती जो विदेश में जाके पढ़कर वहाँ रहने का होता, तो आप वो चुन सकती थी, या आप वकालत करने के बाद भी विदेश जा सकती थी, वहाँ सेटल हो सकती थी. Why did you choose to stay back? I mean, family could be one of the reasons, but why did you choose to stay back in Nagpur? So honestly, I did want to go for my masters, but COVID happened, तो masters मुझे यहीं दिल्ली से करना पड़ा. बाहर जाने का मेरा कभी से ऐसा नहीं था that I want to settle outside and work for them. I wanted to stay in my country and do something यहीं पर, especially with taking pro bono cases. I always looked up to people कि जिनके पास they don't have the means to support their families, to support themselves, but these cases happen, right? So many cases. आप बात करो लैंड की, प्रॉपर्टी की, आप क्रिमिनल केसेस लो, आप सिविल लिटिगेशन लो, होते हैं, but people do not have money for that. So I always wanted to do a few pro bono cases along with the practice that I am still into. तो वही मेरा प्लान था कि मुझे इंडिया में रह के इंडियंस के लिए ही कुछ करना है हमेशा से. आई नेवर हैड दैट इन हेड कि बाहर जाके पैसे कमाने या सेटल होना है, नेवर. सो या दैट्स व्हाई आई एम हियर. ये जो कहते हैं कि कोर्ट में जब जज के पास कोई भी केस जाता है, जज को पहले दिन ही पता रहता है who's right who's wrong, somewhere or the other. कहीं ना कहीं वो फील आ जाती है
कि जज नो समवेयर और द अदर डीप इनसाइड, बिकॉज विद एक्सपीरियंस कोई जज बना है तो बहुत एक्सपीरियंस के बाद बना है ना, तो उन्हें पता होता है। लेकिन फिर भी जो प्रोसेस है वो एक बड़ा टाइम लेता है। मैं फिर से घूम फिर के वही बात पे आ गया जिस बात पे हमने शुरू की थी, तारीख पे तारीख, बट नॉट तारीख पे तारीख, बट द जस्टिस, when talk about the justice, that वो कहते हैं कि justice delayed is denied, ऐसा होता है, delayed denied होता है। डिलेड डिनाइड तो काफी केसेस में नहीं होता है और होता भी है, मतलब बोलते हैं डेफिनेटली क्या होता 50-50 है या मतलब नॉट थ्रू एंड थ्रू, बट यस देयर इज अगेन अ थिन लाइन। क्योंकि होता क्या है, एज यू सेड कि जजेस को पता होता है, जजेस कैन नॉट हैव अ प्री रिक्विजिट थॉट। अगर इफ ही इज बायस्ड टू समबडी ही विल नॉट टेक दैट केस। लाइक माई जज सर जिनके साथ मैंने काम किया, व्हेन ही वाज लाइक ही थॉट कि मुझे इसका यही लग रहा है और मेरा दिल इसी पे जा रहा है कि यही चीज होनी चाहिए, और फॉर एग्जाम्पल स्टेट आप राइट हो, राइट, ही यूज्ड टू से दिस केस इज नॉट बिफोर मी, मुझे ये केस नहीं करना। मैं प्री रिक्विजिट थॉट से एंटर कर ही नहीं सकता, आई कैन नॉट बी बायस्ड। जज का काम दोनों पार्टीज को इक्वली सुनना होता है विदाउट एनी प्री रिक्विजिट जस्टिफिकेशन इन हिज हेड, राइट। अब क्या होता है, कुछ केसेस जेन्युइनली टाइम लेते हैं, बिल्कुल टाइम लेते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन लैंड केसेस की आपका केस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स इंसान का केस है, द इंसान ही इज पास्ड अवे, नाउ द लीगल एयर विल कम इन टू पिक्चर, राइट। सो यू हैव टू पुट अ LR की एप्लीकेशन एंड सो इट हैपेंस। तो क्या करेंगे, अब वो उनकी डेथ हो गई, फिर दूसरा बच्चा आ रहा है, फिर दूसरा बच्चा आ रहा है, दिस हैपेंस। अब इन अदर केसेस ऑल्सो, लाइक आप बेल देखिए, फॉर एग्जाम्पल बेल हैपेंस लाइक दिस, ईदर इट्स अ येस और अ नो। कुछ फैक्ट्स चेक होती है, पुलिस की जो डायरी होती है वो चेक होती है, ऑल दीज थिंग्स कम इनटू पिक्चर, एंड आफ्टर दैट द जज सेज कि ओके आपको बेल ग्रांटेड होगी, बट ये आपकी कंडीशंस है, या सॉरी सर आपका क्राइम इतना हीनियस है, यू हैव टू गो बाय द लॉ बुक, कि आपको बेल मिल ही नहीं सकती। तो कुछ केसेस एक्चुअली फास्ट है और कुछ केसेस को टाइम लगता है। आपकी एक्सपर्टीज क्या है? एडवोकेट कृतिका पाटनी की एक्सपर्टीज क्या है? क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ, या ओके। अब बहुत जल्दी आपकी शादी भी होने वाली है। क्या बनने वाली है आप शादी के बाद? मिसेस वैद्य। ओके, अथर्व वैद्य। अथर्व वैद्य। या तो अब क्या कभी सोचा कि फैमिली कोर्ट की तरफ भी, क्योंकि आप क्रिमिनल लॉ की तरफ आपका हमेशा से रुझान रहा है, क्या कभी सोचा कि फैमिली कोर्ट भी एक बार आजमा लिया जाए? मैंने किया है फैमिली कोर्ट, यस। कैसे हालात हैं क्या फैमिली कोर्ट के? फैमिली कोर्ट इज, राज, ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट है। हम जो लाइफ जीते हैं ना, हम बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं कि हमारे लाइफ में ये सब उतार चढ़ाव हम नहीं देखते। फैमिली कोर्ट में आए गए दिन यू गो थ्रू डिवोर्स, यू गो थ्रू मेंटेनेंस, you go through n number of adoption cases. also, child adoption is 100% there. ये भी अब क्या हो रहा है, डिवोर्स के बाद कस्टडी के केसेस होते हैं। I've seen people crying in the corridors, people harassing each other, the husband and wife, कि नहीं हम इतना ही मेंटेनेंस देंगे, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। वाइफ इज सेइंग कि नहीं फिर मेरा गुजारा कैसे चलेगा, हजार चीजें होती है। फैमिली कोर्ट इट गेट्स टू यू, क्योंकि आप बहुत पर्सनल लेवल पे अपने क्लाइंट से डील करते हो बहुत ज्यादा, और वो आपके ऐसा लगता है यार कि दिस इज हैपनिंग टू मी ओनली। तो इट वाज नॉट इजी। मैंने ज्यादा तो नहीं, ऑनेस्टली 20 केसेस कुछ किए होंगे फैमिली कोर्ट के, बट आई रियलाइज्ड कि ऐसे मैं करते गई तो मेरा शादी से विश्वास ना उठ जाए कि आई वांट टू गेट मैरिड, सेटल डाउन। दैट्स व्हाट माय सीनियर आल्सो यूज्ड टू टेल मी। सो फैमिली कोर्ट इज ग्रेट। आई एम ग्लैड कि हमारे पास एक अलग कोर्ट है फॉर दीज family matters, disputes and everything, but it is tedious, it gets to you, but at the same time it is pretty interesting. Like मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना और न्यायपालिका कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों जगह जस्टिस मिलता है ना, लेकिन न्यायपालिका की सीढ़ियां जो लड़की चढ़ती है, मैं एक महिला की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग अ सेक्सिस्ट हियर, बट देन आई वुड लाइक टू कोट दिस हियर, कि एक लड़की, एक महिला जब कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ती है तो उसके अंदर में एक अजीबोगरीब स्ट्रेंथ है, ये समाज सोचता है कि वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेडी है।
स्ट्रॉन्ग हेडेड है, आप ये स्ट्रेंथ कहाँ से लेकर आती हैं? It's my parents. Through and through, it's been my parents. Initially also, you know what had happened कि लॉ करना है, कोर्ट कचहरी करना है. You know the taboo that we have in our society, as you said, कि there is a big taboo कि यार एक लड़की काले कपड़े पहन के कोर्ट में जाके आर्ग्यूमेंट कर रही है, इसका तो नेचर ही वैसा होगा. शी विल बी वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, हर चीज में इसको अपनी रखनी होगी, क्योंकि वकील है, मतलब आर्ग्यू करने का इसका काम है. स्पेशली लड़की, ये तो शादी नहीं चला पाएगी भाई अपनी, ये तो हर बात पे आर्ग्यू करेगी. तो वो एक स्टेरियोटाइप इज देयर, वाज देयर, आई हैव सीन इट इन आवर सोसाइटी. बट माय फादर, ही वाज ऑलवेज बिहाइंड मी. ही इज गिवन मी दैट स्ट्रेंथ कि बेटा डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल फेस द वर्ल्ड, नोबडी विल से एनीथिंग जब तक मैं खड़ा हूं. So it is through and through, it's been him, he's stayed up with me. You know, the kind of knowledge that I possess also, especially when it comes to general knowledge in politics, it's because of him. Whatever doubts I have to go and speak with her. We speak to each other, he clarifies all my doubts. He's also very, very well read human. So it's through and through him, and it's honestly not been easy. Being a first generation lawyer in your family, then going to the court of law, practicing law there, understanding. Raj, I'll tell you, my first day as an intern, you know, I was in first year. It was a total different world. Like the first time I had stepped inside the court of law, it was the High Court. I've been to the High Court more often. So I'm practicing there only. It was a different world, a huge world, and people are running here and there. You know, the numbers are going on. It was a chaos. It was a fiasco. So, and I was a little kid sitting down, trying to understand what is happening. One of my seniors came to me. She drew me a picture of the High Court, saying, "Darling, you will get lost. Please ये मैप स्टडी करो. यहाँ पे क्रिमिनल विंग है, यहाँ पे सिविल विंग है, यहाँ पे फाइलिंग होती है, XYZ." So all of that, and that's when I started learning. She told me 7 days, le lo, just understand what is going on. Now, because I am a first generation lawyer, I did not know the ABCs of it. I had to start from scratch. अब जो lawyer background को belong करता है, they've seen all of this before. बचपन से ही वो देखते आ रहा है. So I had to work harder in order to get accepted and to be able to talk like this in front of the judge and thousands of lawyers standing behind. मतलब आप एक फंबल कर रहे हो, everybody would know, और आप एक गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकते on the dais. Absolutely. Right? It will be perjury, it will come on you, and it will cost the life of the client. हम भले ऐसे जान नहीं बचाते, like medical professions, I have immense amount of respect for them, like super salute to them, but हम जिंदगी वैसे बचाते हैं ना कि अगर आपका घर गिरवी है, फॉर एग्जाम्पल, आपका वो केस चल रहा है, तो द ह्यूमन इज गिविंग एवरीथिंग कि सर आप प्लीज हमारा ये कर दो, आप हमारे बच्चे को बेल पे बाहर निकाल के ले आओ, सब ले लो हमसे, तो जान ही बचाना हुआ ना. सो वी कांट प्ले विद देयर लाइव्स. तो बट जिस तरह डॉक्टर्स आज अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए, you know, they are demanding the government to come up with a security policy. The lawyers, the advocates have also been, you know, expecting or demanding or expressing their views on having a, you know, a strict and a stringent law when it comes to their security also. What's your thought? I completely agree. I myself have had said in some interview that we are in the need of stringent laws. We need to make the legal system more strong. आप देखो, दुबई है, मलेशिया, सिंगापुर, laws are so strict. Like अगर एक आंख उठा के भी आप देख रहे हो और लड़की ने कंप्लेन कर दिया, तो you are inside, and if you're not belonging to the country, you're deported through and through. And so we need to have such kind of laws कि सामने वाला सोचे यार करने से पहले. अब क्या हो रहा है ना, जैसे मेडिकली, साइकोलॉजिकली ऑल्सो व्हेन वी टॉक, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, ग्रूसम होता है, इंसान के जब दिमाग में ये सब चीजें आ रही है ना, वो ये सब सोचता नहीं है कि आफ्टर दिस, oh my god, I will be put to that, or oh my god, it will be a life imprisonment for me. People don't think that. It just happens. So मैं ये भी बोलती हूँ कि हमें criminal psychologists की बहुत जरूरत है. More of them. 100%. There are so many doing excellently well. But we need more of them to understand the psychology behind
the nature of the crime that is happening. So that is, these two aspects have to happen. तभी जाके probably हम एक वेल बीइंग के तरफ बढ़ेंगे एज अ सोसाइटी, और ये हमें साथ में ही करना है, ये अकेले से नहीं होने वाला. ये जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर वाली जो पूरी बात हुई आपकी और मेरी, ये while you were studying, what was the ratio of a boy and a girl when it comes to becoming a lawyer? I wouldn't lie on this at all. So in my class's strength was 60 when it was our first year. तब जाके I think there were like 15 to 17 girls and rest were males. Oh, So that was the strength. so After that, 20-25%. yeah, 20-25%. After that, one semester we gave, people fumbled, people left. Second semester, people failed, people left. ये पूरे 5 साल चला है. आते आते strength was 30-35. Oh. Why did you choose criminal law? आप corporate lawyer भी बन सकती थी. मैंने मेरा मास्टर्स कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल लॉ में ही किया है. सो पता नहीं, शुरू से ना आई हैड दिस इंक्लिनेशन. मुझे कभी कभी लगता है मैं साइको हु लाइक्स टू रीड अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टू अ पर्सन. मेरा हमेशा से एक इंक्लिनेशन रहा है टुवर्ड्स दिस, और मुझे पढ़ना भी क्रिमिनल लॉज के बारे में पसंद है. और मुझे मेजरली लगता है यार, मैं अगर स्टेट के तरफ से लड़ू कभी, एज अ स्टेट लॉयर, तो मे बी आई विल बी एबल टू फाइट फॉर द पीपल इन नीड, लाइक, एंड नॉट डिफेंड द क्रिमिनल्स. कभी हुआ है कोई आपके पास आया और बोला मैम मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है, हाँ, कैन यू हेल्प मी? yeah, we have. Yes, we have helped her. And she was an old lady, मतलब आप समझिए 60-63 अराउंड, एंड शी वॉज एन ओल्ड लेडी. एंड कुछ उनका इसका मेंटेनेंस का ही केस था, और उस टाइम पे ऐसे था, इट्स बिन अ वाइल, तो उनको ऐसे था कि बेटा कुछ पैसे नहीं है, आप फिर भी, आई एम लाइक, आई एम ऑल फॉर प्रो बोनो केसेस. व्हाट्स योर थॉट फॉर सीनियर सिटीजन्स जिनके बच्चे उनके माँ बाप को घर से निकाल देते हैं? Don't ask me. I cannot even see a full video. I get teary-eyed. This is something, ये कैसे हम समाज को समझाएं कि भगवान एक्चुअली माँ बाप भगवान के रूप होते हैं. That is period. Taking people out of your house, throwing them away. Old age homes में लोग रह रहे हैं. क्यों? अगर आपके पास you don't have the means, okay, to probably take care of them, या अगर उनका एक्सपेंडिचर बहुत है, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत है, तो भी दे वुड हैव आल्सो डन द सेम थिंग टू यू ना, व्हेन यू वर किड्स, कि बेटा सॉरी, वी आर पुअर, वी डोंट हैव द मीन्स, गेट आउट. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन दिस होल वर्ल्ड. ओल्ड एज होम्स है, आई एम सो हैप्पी कि आई एम ऑल्सो अफिलिएटेड टू वन ऑफ देम. आई ऑल्सो ट्राई टू डोनेट एज मच एज आई कैन, बट at the same time it's painful to see them like that. But on the contrary, if you think कि अगर किसी के बच्चे साथ में नहीं रहते हैं या अब्रॉड रहते हैं, वो पेरेंट्स यही रहते हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए कौन है? पास में तो कोई है नहीं, कोई भी बच्चा नहीं है. तो इट्स गुड कि अगर वो ओल्ड एज होम में भी रहते हैं, उनकी सेम एज ग्रुप वाले लोग होते हैं साथ में, तो दे आर हैप्पी, उनका मन लगता है, उनकी केयर होती है. मेजरली ओल्ड एज में यू नीड केयर एंड लव. और क्या, मैं जिला गया हूँ, है ना, हमारा जो हाई कोर्ट है वो तो इट्स बेटर, है ना, बट व्हेन इट कम्स टू द लोअर कोर्ट, द फैसिलिटीज देयर आर मतलब क्या ही कहें, वो लिफ्ट के लिए भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, वो वकील रहे या कोई आरोपी या फिर कोई जजमेंट के लिए आया हुआ, उसकी तारीख है, और पंखे किस तरह से चलते हैं, लाइट्स, धूल, साफ सफाई, washrooms. For a girl, yeah, I would really like to know how difficult it is for a girl to get adjusted to the environment of this kind of court where the facilities are so hopeless, and especially for a female, because there are monthly days, there can be a senior lawyer who might have days of menopause, there can be a lady who's in the early days of pregnancy. How difficult, how easy, how frustrating? It is honestly, जो आप बोल रहे हो, condition of our lower courts, the district courts,
कंडीशंस तो नहीं है अच्छी. वी हैव स्पोकन, वी हैव साइंड अ पिटीशन. हमने कोशिश करी है कि चीजें सॉर्ट हो वहां पे, स्पेशली क्लेनलीनेस को लेके, आपका वॉशरूम्स को लेके, ओवरऑल जहां हम बैठ रहे कर रहे उन सब चीजों को लेके. थिंग्स ऑनेस्टली मैं बोलती हूँ लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, दोनों के लिए चीजें वहां थोड़ी डिफिकल्ट है. लड़कियों के लिए ऑब्वियसली बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड समबडी बीइंग प्रेग्नेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट. बट हम कोशिश ये करते हैं कि अगर ऐसा सीन है तो भाई पहले लिफ्ट दे दो. अगर कोई ओल्ड इंसान है या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, सो स्टैंड इन अ क्यू, एटलीस्ट अलाउ देम टू गो अप. थिंग्स आर नॉट इजी देयर, बट देन इट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू. करना तो पड़ता ही है, जाना तो पड़ता ही है, आर्ग्यू करना पड़ता है, सब करना. हम कोशिश ये करते हैं कि हम ये समझाने की करें कि प्लीज यहाँ की कंडीशंस आप थोड़ी सॉर्ट कराइए. अदरवाइज 8-8 फ्लोर चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है. इट सकम्स अस ऑनेस्टली, इट इज नॉट इजी. बट अभी आपको पता है बीच में जो कार पार्किंग एरिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वहां पे कार्कसेस पाए गए ऑफ वेरियस एनिमल्स. सो डंपिंग यार्ड बना के रखा है. क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं यही बोलना चाहूंगी आगे भी कि अथॉरिटीज को भी कि प्लीज सर मैम टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस. एंड लॉयर्स के लिए भी, कोई भी लॉयर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट वहीं से करता है. प्लीज उनको इतना रिस्पेक्ट करिए कि एटलीस्ट प्लेस ऑफ वर्क में हाइजीन हो. आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ. इसमें कोई आई एम नॉट बीइंग कि औरतों के लिए ही करिए, बोथ फॉर मेन एंड विमेन इक्वली. प्लीज, that's what I'm going to appeal through you, Raj. अब आगे क्या करना है? यही करना है जो कर रही है? Yes, I mean I have planned to start something of my own firm, and I would love to continue as a lawyer. But as I've not commercialized my practice into one segment, I'm open to cases. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ क्रिमिनल केसेस ही करूंगी. I told you my inclination is towards land as well. So yeah, I'd love to serve people. I would love to do pro bono cases 100%. और yeah, that's about it. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, क्योंकि ये इंटरव्यू हमेशा रहने वाला है यहाँ पे, तो मैं आपका पूरा नाम लेता हूँ. एडवोकेट कृतिका पाटनी वैद्य, है ना? Yeah. अगर सुनहरी किताब लिखी गई और ये नाम उस पर लिखा गया, उसके नीचे क्या ऐसा लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें, आपको फॉलो करें? A quote of your life or something you believe in. I should say, I think I have two that's popping on my mind right now. First would be, knowledge is very important, but you should know where to find it and use it. जब आपको जरूरत है आपको यूज करना आना चाहिए. Yes. And second would be never give up. Never give up. Just fly, girl. आप ऐसी ही आसमान में उड़ती रहें. आप आई एम श्योर there might be, this interview would be watched by a lot of girls out there, young girls who are probably also aspiring lawyers, advocates. Advocates, lawyers, and ऐसी मम्मीज जो जिनकी बिटियां हैं और वो भी चाहती हैं कि उनकी बिटिया एक ऐसे करियर में जाए जहाँ सिर्फ वो अपना काम अच्छे से कर पाए, लेकिन सेवा भाव भी उसके अंदर रहे. और इतना अच्छा अगर उनकी बिटिया भी बोल सकती है तो वो आपकी जैसी एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकती है. That's a huge thing that you've said. Yeah. आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, ऐसे ही इंस्पायर और ऐसे इंस्पायर करते रहें. आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. Honor. Thank you so much. एडवोकेट कृतिका पाटनी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. एक बात मैं चाहता हूँ आप सब जितने भी व्यूअर्स हैं वो ये बात समझें कि आप जीवन में, अगर आप नागपुर में रहते हैं तो आप जीवन में एक बार लोअर कोर्ट जरूर जाए और अपने परिवार के साथ जाए और पहले दिन फर्स्ट फ्लोर घूमें, उसी दिन सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करके सब ऊपर तक जाए, 7वां 8वां माला 8th फ्लोर तक जाए और वहां से पैदल पैदल नीचे उतर कर आए और अपने एक्सपीरियंस को अपने वोट में तब्दील करें. अपने एक्सपीरियंस को अपने वोट में तब्दील करें. वैसे ही आप नागपुर के जीएमसी में जाएं, वहां जाकर आप एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ चक्कर मारें,
सब वार्ड्स में जाएं, है ना, वहाँ का आईसीयू देखें, वहाँ पे पूरे जितने भी कॉरिडोर्स है वहाँ देखें और उसको ना अपने वोट में तब्दील करें. नो कांग्रेस एंड नो बीजेपी हैव ब्रॉट दैट चेंज. ये जितने हैं ना, ये सब काम के नहीं है. प्लीज डोंट वोट, प्लीज डोंट वोट. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू. कोविड के दौरान मैंने राज की बात शुरू किया था और मैंने बहुत उम्मीद की थी कि कोविड के बाद चीजें बदलेंगी. कुछ नहीं बदला. वी आर बैक टू स्क्वायर वन. मैं कोर्ट गया हूं और मैंने कोर्ट में जो हालात देखे ना, आप उम्मीद नहीं लगा सकते. और आप उनके लिए छोड़िए जो न्याय की उम्मीद के लिए आते हैं या फिर आरोपी हैं वो आते हैं. आप वहां पर जो पुलिस वाले बैठे हैं उनके हालात देखिए. वहां पे जो वकील रोज आते हैं उनके आप हालात देखिए. कभी आप सीढ़ियों से चढ़ के जाइए. पहले ही घुसते साथ आप देखेंगे वहां पे जो लिफ्ट है, वो लिफ्ट के बाहर में जो लाइन लगती है, वो देखकर इतना दुख होता है जिसकी कोई हद नहीं. किस किस्म का सिस्टम है हमारे यहाँ, किस किस्म की परिस्थितियां हैं, किस किस्म की सुविधाएं हैं. और ये सुविधाएं क्यों नहीं है? आफ्टर 76 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम आज यहां खड़े हैं. हमारे पास कोर्ट्स हैं, हमारे पास लॉयर्स हैं, हमारे पास जजेस नहीं है. सरकार पे सरकार बदल दिया ही. आप रोड बना रहे हैं, आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, आप मेट्रो बना रहे हैं, लेकिन आपका लीगल सिस्टम आज की तारीख में घुटनों पे है. आपका मेडिकल सिस्टम घुटनों पे है. आपका एजुकेशन सिस्टम घुटनों पे है. ये है द शाइनिंग भारत. इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी 1947 से पहले. उन्होंने ये अपेक्षा नहीं की होती, उन्होंने ये अपेक्षा नहीं की थी. और अगर इस किस्म के सपने उनको आते ना कि आने वाले वक्त में भारत ऐसा होगा, वो आजादी के लिए कभी नहीं लड़ते. सौभाग्य की बात यह है कि एडवोकेट कृतिका पाटनी जैसे लोग हैं जो कम से कम अपनी बात खुलकर रखते हैं. नहीं तो लोग तो इलेक्शन में दादा भाऊ ताई के चक्कर में सब भूल जाते हैं जो आपने नहीं भूलना चाहिए. कृपया पार्टी देखकर ना वोट ना डालें. कृपया सामने वाले से पहले पूछें कि वो मैनिफेस्टो में जो लिख रहा है वो डिलीवर करेगा क्या. अगर वो डिलीवर नहीं कर सकता उसको वोट मत दें. Ask them to get out, not just from your house but also from the society. We don't need leaders like this who don't deliver. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने पिता के विश्वास पे झांसी की रानी बन सकती है, अपने घर के दिए हुए संस्कार में इतना बिलीव करती है कि उन संस्कारों से वो प्रोत्साहित होकर समाज के दर्द को अपने सीने में लिए रोज लड़ने को निकलती है, और उसकी वजह से कई सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है, तो समझिए वो कृतिका पाटनी बन रही है. आप अपनी बेटी को कृतिका बनाएं. जिंदा रहें. जय हिंद.